So we are going to have three workshops in convolutional neural network, which is going to be pretty easy. The first one is absolutely very easy. We are not going to dive in towards convolutional operations basically, but we are going to perform a workshop on CNN. कि CNN काम किस तरह कर रहा है with just a minor of accuracy. Like we may not be having a great accuracy because it's going to be a very simple CNN network, but tomorrow in the same framework we're gonna have uh, some really advanced CNN operations. We're gonna dive into how CNN is working a lot in the deep learning scenarios, and then we are gonna. The third workshop is going to be the same with PyTorch. आज हम TensorFlow चूज कर रहे हैं फॉर द इंट्रोडक्शन बिकॉज TensorFlow में sequential API जो होती है उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन के लिए काफी आसानी हो सकती है बट tomorrow we're not going to work on sequential I guess, and then we are not going to work on sequential or PyTorch as well. You're going to work on some high functional API, and that is very core essential because CNN is something no one will ask you to work on. You can say no one will ask you to work on sequential API. CNN, if you are working on CNN, of course, then it means that you are going to work on some pretty advanced neural networks and some kind of things. Yeah. So let me just pull up my screen, and you know what type of tragedy we face. Like, for example, fiber optics were died. They said it seems like you have connected a server. I said no, I have not connected a server, and the reason was that I was doing a lot of web scraping lately, just because of gathering the data sets from the internet, and they assume that I have been using server. And there were so many things, and yeah, they disconnected the connection without authenticating me, without telling me before, and then I have to face some troubles for that. And then I have to upgrade my connection to commercial one because they said that your usage is resembling the commercial usage in being living in a home. So yeah, that's kind of things. So no worries. All right, I hope my screen has been shared properly. So this is my GitHub, of course. So you can navigate to CNN and TF in short convolutional network TensorFlow, and just grab this notebook out when you want to practice on this. All right, so we're gonna start on our convolutional network. इतनी पुरानी ये notebook बनी हुई है. I even forgot, but I have wrote it here. So yeah. So पहले मैं रन कर लूँ सबको. या चलो छोटी सी वर्कशॉप है. Just got it reminded क्योंकि Saturday की बनी हुई है. That is why. And sorry for not uploading videos, but I just have pulled up my YouTube right now, and one video is currently on the upload, and it can disturb my video quality as well in bitter while because I don't know. But by tonight, all videos is going to be uploaded, so don't worry. There are three videos in pending, and four today's one. So four videos will be uploaded by tonight or tomorrow's morning, so you won't be having any such the problem. Tragedy goes with territory. So I think I have made my point. So no worries. All right. So Control and FN. All right. Some students who are using Mac OS were having trouble that they were unable to create Python or pip environment in their systems because I've been telling some students lately that if you are experimenting with some packages in Python, so make sure you create a separate Python environment or a separate Anaconda environment in your directory because it will help you to prevent any mess created upon your system. फॉर एग्जाम्पल अब आप अगर अपने सिस्टम में काम कर रहे हो इन बाय चांस आपने दो तीन लाइब्रेरी ऐसे इंस्टॉल कर ली है विच इज कम्प्लीटली अफेक्टिंग योर पाइथन main pip environment, so your all system is going to get a mess over in the Python scenario. So for that case, I usually recommend people to have Anaconda and create an environment of Conda, or some create another virtual environment of pip in specific directory where they have to install specific libraries for the specific project as you can say dependencies. So in that scenario, if you are using Mac OS, you may have some problems. Okay, तो मैंने खुद ट्राई किया है एंड दैट इज व्हाई आई एम ऑथेंटिकेटिंग इस. मैंने पहले कभी मैक ओएस के ऊपर वाकई में कभी पिप का बनाया virtual environment इतना ज़्यादा,
Conda में सारा काम हो जाता है, so I will recommend, so try keep working on Anaconda, but if you still observe के मुझे Python के पे ही काम करना है, I don't want to work on Anaconda, just in case, just if you want to work on the secondary virtual environment, so there is nevertheless you, I just found a blog on the Medium which is pretty beneficial and it helped me a lot to initiate a session of virtual environment in Python using Mac. So you can perform. I'm going to share the link after the class. So then those students will not be having such kind of problems. All right. So which is convolutional neural network and why we are learning it? Why it's known as a introductory masterpiece of deep learning era? Why it's CNN is something which is known by every deep learning engineer? Why CNN is something that whenever you say deep, even before RNN, CNN is taken as a name of famousity. So बात सिर्फ simple इसकी है कि this works different than a normal artificial neural network. Of course, अब normal artificial neural network में क्या होता है, CNN में क्या होता है? So it's pretty simple. Normal artificial neural network के अंदर हमारे पास for example एक input layer है और फिर हमारे पास एक hidden layer है. अब input layer हमारे पास let me see if I'm coming a flip one or yeah. तो मेरे पास अगर input layer है and then I'm gonna having the you can say hidden layer as well. So all right. Okay. Okay, I'm zooming a screen a little bit. Some students saying, sir, your internet still is having problem. That should not be the case, but let me see it. Let me know if my internet was working fine. Okay, so let me know, please. Just for an instance, I'm disconnecting from video camera because someone has said कि सर आपकी वीडियो में बहुत लैग है, वैसे इतना लैग नहीं आ रहा है. So all right, I'm just ignoring the video. Thanks, Lisa, for letting me know. So I have just disconnected my face camera. Thank Mohammad Ali for letting me know. Okay, so we'll just continue with the proportion what we were having right now. कि क्या हमारा था आज का. So okay, all right. So yeah. So now for example, अब हमारे पास CNN के अंदर एक चीज और होती है और वो होती है कि for example से कि मेरे पास आप लोगों ने इमेज क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है, आपने वो पढ़ा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू भी पढ़ा है, आपने वो पढ़ा है यू कैन से आपने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू भी पढ़ा है. सो यू हैव स्टडीड यू नो इमेज क्लासिफिकेशन विद अ लॉट ऑफ combinations and I'm pretty sure you may have find different results in different scenarios, but one thing you didn't focus on there कि आप जब भी कोई डेटा सेट ट्रेन कर रहे थे, सो इट वाज ऑल यू कैन से सेंट्रली प्रोवाइडेड डेटा सेट. सेंट्रली प्रोवाइडेड डेटा सेट मींस कि आपको जो चीज क्लासिफाई करनी होती है वो इस इमेज के अंदर सेंटर्ड होती है. सेंटर मींस कि इमेज में एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं व्हिच हेल्प देम इजीली टू क्लासिफाई. अ सिंपल न्यूरल नेटवर्क को इजी हो जाती है, आसानी हो जाती है कि उसको आराम से क्लासिफाई कर ले. सो नाउ इन दैट सिनेरियो फॉर एन एग्जांपल कि मैं आपको इस तरह बता दूं कि आपके पास एक बैकग्राउंड है जिसके अंदर यू आर हैविंग अ वंडरफुल सीनरी एंड देन यू आर हैविंग अ लुक अराउंड कि आप भी हो, आपके साथ कुछ एनिमल्स खड़े हैं, आपके साथ कुछ स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग नजर आ रही हैं एंड एट सच एंगल यू आर स्टैंडिंग अलॉट एंड नाउ यू हैव अ मॉडल जिसके अंदर वो ये सब चीजें ट्रेन करता है. फॉर एग्जांपल CNN अलग ट्रेन कर रहा है, वो
वो इस तरह के स्काई स्क्रैपर्स अलग ट्रेन कर रहा है, इस तरह से ह्यूमंस को अलग ट्रेन कर रहा है, फिर ह्यूमंस को रिकॉग्नाइज भी कर रहा है। ठीक है, सो देर आर सम थिंग्स विच इट हैज टू डू इन इमेज क्लासिफिकेशन। तो वो जब आप अपने परफॉर्मेंस में करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, सो इट विल नॉट बी परफॉर्मिंग एज सच ग्रेट एज यू एक्सपेक्टेड, बिकॉज सीजन के अंदर हमारे पास कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और बहुत सी चीजें फिल्टरिंग होती हैं जो कि आज हम नहीं पढ़ रहा, हम कल पढ़ेंगे उसको डिटेल के अंदर। सीनियन को कल हम सीनियन को इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह एक डीप लर्निंग इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। आज हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं। तो सीनियन के अंदर हमारे पास फिल्टरिंग होती है। अब फॉर एग्जाम्पल वो हमारी एक पिक्चर को लेगा, अब एक पिक्चर को लेने के बाद फॉर एन एग्जाम्पल उसके अंदर से ब्रेक थ्रूज कर देगा, लाइक बैकग्राउंड अलग हो जाएगा हमारा, स्काई स्क्रैपर्स अलग हो जाएंगे, ह्यूमंस अलग हो जाएंगे, एनिमल्स अलग हो जाएंगे, एंड दिस काइंड ऑफ सिनेरियो विल हैपन। अच्छा, मैं लेट मी सी के इफ आई कैन फाइंड अ विजुअलाइज्ड वर्जन ऑफ दिस एग्जांपल, filtering of image in CNN, so you will understand what I am trying to say. Okay, so अब ये नेटवर्क की दिखाएंगे जिसका कोई आप लोगों को शायद इट्स गोइंग टू टेक यूजुअली टेक्स सम टाइम टू बिल्ड दैट फॉर्म ऑफ diagram. That is why I also haven't did yet. So okay, no, not quite possible for explaining you. Comparison of filters, feature maps, and interface. Yeah, this can be good enough. Okay, all right, and this one, no, that's going to be pretty hard. All right, so for now, is great to just focus on this example which I've opened here. This is पूरा block खुल गया. I just want to open this image only. अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर देखो, so here we are saying feature map to certain filter in a high correlation rate computing using different images. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के पास हमने इमेज दी जिसमें हमारे पास कैट्स है। अब हमारे पास सारी जो इमेजेस है वो सेंट्रली अवेलेबल नहीं है। अब किसी के अंदर हमारे पास फेस यूं आ रहा है, किसी तरह हमारा फेस यूं आ रहा है, कहीं पे फेस इस एंगल से आ रहा है, कहीं से हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, कहीं से इस तरीके से आ रहा है, कहीं से इस तरीके से आ रहा है। सो वी कैन सी देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स वी आर हैविंग हियर। तो एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क के लिए मैपिंग काफी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। सो नाउ इन द सिनेरियो ऑफ सीन है, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो वो, अच्छा इसमें इतना डिटेल में नहीं बताया मैं, बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। वो बैकग्राउंड सबसे पहले अलग करके इस बिल्ली को यहाँ से मतलब ना क्रॉप कर लेगा कि भाई मुझे ये बिल्ली चाहिए, ठीक है ना, उसको मास्क कर लेगा। देन उसको यहाँ पे मैप करेगा जो फीचर उसको रिक्वायर्ड है। उस फीचर को रिक्वायर्ड करने के बाद, जैसे अब ये इसके फीचर्स रिक्वायर्ड फीचर्स थे, इसने यहाँ पे भी वही फीचर रिक्वायर्ड कर लिया, सम हाउस ने यहाँ पे भी वही फीचर रिक्वायर्ड कर लिया। अब ये इसने यहाँ पे वो फीचर रिक्वायर्ड नहीं कर सका, यहाँ पे फेस अवेलेबल था लेकिन यहाँ पे भी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सका, बिकॉज दिस इज फीचर मैप्स ऑफ एन इंटरप्रिटेबल फिल्टर्स एंड दीज आर फीचर मैप्स ऑफ एन ऑर्डिनरी फिल्टर। ये उसको पता चल रहा है कि these are not the face and it's detecting to separate it from the face to let it know कि मेरे पास फेस का है। अब ये इसने यहाँ पे एक मतलब कैन से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर दी है, बिकॉज इट हैज somehow the face, लेकिन ये इसने उसको यहाँ पे समझ लो आप एक तरीके से सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे एडिशन हो रही है, ठीक है, एक आसान अल्फाजों में। इसको बिल्कुल डीप लर्निंग के लेवल में मत लेके चली जाएगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है सीजन के अंदर, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आप उसको समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर, आज हमारे पास जैसे कुछ इस तरह के सैंपल्स होंगे, कार है, डियर है, हॉर्स है, शिप है। इवन तो दीज आर ऑलमोस्ट सेंट्रल, दे आर नॉट सच काइंड ऑफ इमेजेस के इतना खास इशू नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आपको देखना लगेगा कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होगी, बिकॉज ड्यू टू सम नोविस सीएनएन लेयर वी आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे। वो बहुत ज्यादा आसान सा होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज CNN CNN can do a pretty good a job when it comes to image classification, computer vision techniques. आगे जाके जब आप ट्रांसफर लर्निंग का एक कंसेप्ट होगा, आप जब वो पढ़ेंगे, देन यू विल सी दैट हाउ CNN is highly active when it comes to transfer learning, and that is why CNN get itself a very important prestige. के
आज बहुत सारे हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है, फास्ट CNN, फास्ट CNN, उसकी भी कितनी सारी टाइप्स है हमारे पास, लेकिन CNN इट्स स्टिल द बॉस व्हेन इट कम्स टू डीप लर्निंग, बिकॉज इट्स द पॉइंट वेयर if you cannot learn it, you cannot enter into deep learning, you can say scale. So we're going to start our workshop by just simply importing these libraries, which is import TensorFlow STF, and from TensorFlow class importing datasets layer models, importing matplotlib.pyplot.splt, and download it, prepare the Cypher 10 dataset. Actually, my YouTube video is taking a lot of time, a lot of internet. Maybe that is the reason my webcam just got lag. So, but don't worry, YouTube video is more important. राइट, अच्छा ये जो हमारा डेटा सेट है, ये हमारा डेटा सेट टेंसर फ्लो का ही है। अच्छा, अगर आपको देखना हो कि हमारे पास डेटा सेट कौन सा है और कहाँ से आया है, सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, go towards the internet and search about Safar 10 dataset, and you will easily find it. Google के ऊपर भी अवेलेबल है, एंड दैट्स ग्रेट। अब आप देखोगे सब बहुत सारे लोगों ने, देखो ये ब्लॉग नजर आ रहा है, डेवलप सीरियल फ्रॉम स्क्रैच फॉर Safar 10, स्क्रैच से बना दिया होगा, टेंसर्स बेस्ड या numpy बेस्ड, आई डोंट नो, सो या दे यू कैन डू दैट एज वेल, बट आई डोंट थिंक सो यू नीड इट। अच्छा, यहाँ पे देखो आपको पूरा पूरा डेटा सेट आपको पूरे कंप्यूटर के लिए मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू इंस्टॉल इट इन योर कंप्यूटर, सो यू कैन सिंपली डू इट। दिस इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो which has contributed for this data set. अच्छा, ये data set की pixel resolution बहुत ज़्यादा नहीं है। It's already almost you can say pre-processed and clear cut, size काफ़ी compressed है। So और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। All right, join competition बोल रहा है, competition तो हो चुका होगा, 6 साल पुरानी नोटबुक है। अदरवाइज मैं competition में अप्लाई कर देता और जीत जाता फिर। ओके, सो विल गेट बैक टू इट। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, डेटा सेट्स डॉट क्राइटेरिया डॉट लो डेटा लिखना है। अभी डेटा सेट कहाँ से है हमारे पास, डेटा सेट हमारे पास यहाँ से है, टेंसरफ्लो क्लास से हमने पोर्ट करना है। सो व्हेन यू विल ऐड क्राइटेरिया Safar 10 डॉट लोड डेटा, तो ये ऑटोमेटिकली डेटा लोड कर देगा। तो आपके पास ये डेटा होगा, वो 4 वेरिएबल्स पाएगा, द फॉर्म ऑफ 2 ट्रिपल्स। सो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से असाइन करना होगा ट्रेन इमेजेस ट्रेन लेबल्स। तो आपके पास ये फीचर एक्स है और फीचर वाई है, फीचर एक्स है और ये लेबल वाई, मतलब एक्स वाई आ गया आपके पास, लेकिन ये ट्रेनिंग डेटा सेट होगा हमारे पास। फिर आपके पास टेस्ट डेटा सेट भी आ जाएगा, इसमें ये एक्स होगा हमारे, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एक्स होगा, ये हमारे पास वाई होगा, एंड बाय फॉर्चुनेटली वी गेट एवरीथिंग। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट भी आ गया और हमारे पास टेस्ट डेटा सेट भी आ चुका है। लेट मी जूम माय स्क्रीन फर्दर। ओके, लेट मी नो नाउ इफ इट्स क्लियर और नॉट। फॉर डाउनलोडिंग एंड प्रिपेयर द Safar 10 डेटा सेट, अब इसमें हम पहले हम लोगों ने यहाँ पे लोड कराया है, फिर हमने उसके बाद हमने उसको नॉर्मलाइज कराया हुआ है इस कैटेगरी के अंदर। नॉर्मलाइजिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास वैल्यू 255 तक थी, हमने 0 से 1 तक डिवाइड कर दी। मतलब अब जो भी हमारी वैल्यूज होंगी इस लाइक के एक मिन मैक्स स्केलिंग हो गई है कि कोई भी वैल्यू हमारी 1 से ऊपर जा नहीं सकती, कोई भी वैल्यू हमारी 0 से कम हो सकती है। और हम ये क्यों करते हैं, अगर आपको याद हो, सबसे पहले आप डाटा को नॉर्मलाइज करने की पहली वजह यही होती है कि हमारी कंप्यूटेशन पावर जो है वो कम हो जाए। अब फॉर एग्जांपल आपके मुताबिक शायद 0.1115 प्लस 0.2365 को कैलकुलेट करने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा हो एज कम्पेयर टू एडिंग 3 and 4, लेकिन कंप्यूटर को डेसिमल ऐड करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है एज कम्पेयर टू ह्यूज नंबर्स इन दैट सच अ टाइम। तो जब हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव फॉर्म के अंदर होती है, सो वी यूजुअली प्रेफर कि हमारे पास फिर कैलकुलेशन ऐसी हो रही हो कि प्रॉब्लम जनरेट ना हो रहा हो। ठीक हो गया? ऑलराइट, सो वी गो नाउ फर्दर and let me see if there is any Q&A. Alright, Aliza has asked that, sir, why we use second dense layer in some models when we just add those amount of neurons in the first layer? What's the difference and advantage of adding two dense layer? Yeah, it's simple. You can try both kind of neural network and see what kind of difference you are having. ज्यादा न्यूरल लेयर्स लगाने की एक अगर मैं आपको एक मिथ मिथ होती है ना, मिथ मैं आपको बताऊं, तो एक पहले मिथ थी डीप लर्निंग कहता है कि जितनी ज्यादा लेयर लगाओगे उतने ज्यादा आपका डाटा नो ज्यादा अच्छा आइडेंटिफाई हो सकता है।
इट्स समहाउ ट्रू, लेकिन कभी कभी आपका डाटा ओवर ब्लॉक हो जाता है, कभी कभी आपका डाटा ओवर थ्रेशोल्ड हो जाता है, कभी कभी आपका डाटा आउट ऑफ शेप हो जाता है कि आप उसे फिर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, उस डिजायर्ड शेप में नहीं लेके आ पाते। कभी कभी आपका डाटा इस फॉर्मेट में हो जाता है कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट होता है उसमें जनरेट नहीं हो पा रहा होता, तभी भी हम बहुत ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क्स नहीं लगा रहे होते हैं। कभी कभी आपका बायस होने लग जाता है कि आप इतना ज़्यादा उसको न्यूरल नेटवर्क में परफॉर्म करते हो, एंड द मोस्ट लास्टली जितनी ज़्यादा न्यूरल नेटवर्क होंगे कंप्यूटेशन पावर उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, लेकिन बहुत कम न्यूरल नेटवर्क लेयर्स हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म प्रीटी गुड। जैसे कि आप देखेंगे, आज आप देख लेंगे, आज भी हमारे पास न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज हमारा मॉडल भी इतना कोई खास नहीं बनाया हुआ हम लोगों ने। सो इन दैट सिनेरियो दिस जस्ट हैपेंस। अब फॉर एग्जांपल आप एक इनपुट लेयर लगा दो, एक आउटपुट लेयर लगा दो, लेकिन अगर आपका काम मतलब लीनियर रिग्रेशन से लीनियर रिग्रेशन ही है, सो इट विल परफॉर्म देयर जॉब। ठीक है ना, आपको लीनियर रिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ polynomial regression, so then there is no activation function which exactly perform polynomial out of the box। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनपुट लोगे, इनपुट के बाद हिडन लेयर लगाओगे। फॉर एग्जांपल आपने हिडन लेयर लगाई सिग्मॉइड की, या सिग्मॉइड की तो खैर नहीं लगाने लगे आप फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टमैक्स की लगा लेते हो हिडन लेयर, उसके बाद फिर आप आउटपुट लगा लोगे लीनियर की, तो आपकी जो रिग्रेशन होगी वो अर्थमेटिकली पॉलिनोमियल में बन जाएगी। सो डू ट्राई दिस व्हाट आई हैव सेड। तो ये होता है तरीका। देयर इज व्हाई वी समटाइम्स एडिंग मल्टीपल डेंस लेयर्स। एंड नाउ फॉर एग्जांपल हमारी अब पोलिनोमियल है, लेकिन हमारी पोलिनोमियल की डिग्री अब ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 2 डिग्री में तो हमारे पास एक कर्व बन जाता है, 3 होता है तो हमारे पास एक बहुत वेird सा बन रही होती है पोलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर। सो इन दैट सिनेरियो वी मे हैव टू ऐड 2 डेंस लेयर। आप 2 सॉफ्टमैक्स लगा दो, एक सॉफ्टमैक्स लगा दो, एक रेडू लगा दो, एक सॉफ्टमैक्स लगा दो, एक टेंजेंट लगा दो, सो हाइपर टेंजेंट जो होता है वो लगा दो, उसके बाद आप बीने लगा दो। सो इट विल डू इट्स जॉब द सेम पैनल एज वेल। तो इसलिए हमें मल्टीपल डेंस लेयर लगाने की जरूरत होती है समटाइम्स। Alright, so now here we are going to verify data. To verify that the dataset looks correct, let's plot the first 25 images from the training set and display the class name below each image. अब यहाँ पे हम अपने आसान तरीके से हम कोई कंप्यूटर विजन मतलब ओपन सी की लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे या फिलो नहीं यूज कर रहे जस्ट फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ इमेज, क्योंकि हमारे पास इमेजेस ऑलरेडी प्री प्रोसेस्ड है, हमारे पास जेपीईजी की फॉर्मेट में नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्मेट में है, तो हम के थ्रू विजुलाइज करना है। And now you can see कि यहाँ पे क्वालिटी बहुत वो हो रही है खराब। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसकी रेजोल्यूशन 25 by 25 पिक्सल्स है। सो इट में एग्जैक्टली may not be performing so great as you expected here। लेकिन हमारे पास ये है कि अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आप देखो डियर है, ये हमारे पास डियर है। तो इस डियर के पीछे एक आपको शायद इतना क्लियरली विजिबल ना हो कि डियर शायद नजर भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कि अब डियर नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि हमारे पास क्वालिटी के अंदर एक कंप्रोमाइजेशन आ सकती है कि भाई फॉर एग्जांपल हाउ कैन आई से दिस। अब क्वालिटी में जब कंप्रोमाइजेशन आती है तो मतलब सीजन भी खुद भी कंफ्यूज लगता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। लेकिन इट्स नथिंग टू वरी, जब हमने यहाँ पे ये कर दिया सो इट मीन्स के सीजन खुद ब खुद यहाँ पे बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट कर लेगा, एंड आफ्टर सम सैंपल्स ऑफ डियर इट्स गोइंग टू नो कि डियर की जो नेचर है वो ये है। वो बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट करेगा, और बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट क्या वो खुद करेगा नहीं, हमें कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कूलिंग अप्लाई करनी पड़ेगी जिसकी बिहाफ पे वो बैकग्राउंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा। सो we'll just look at it at of course। अच्छा, नीचे आप देखो तो ये ट्रक है हमारे पास, हालांकि ट्रक की फ्रंट बॉडी नहीं है हमारे पास, जस्ट कंटेनर साइड है, बट स्टिल वी कैन सी के भाई हमारा जो पिक्चर है इट्स रिजेंबलिंग ट्रक, बिकॉज आफ्टर मिलियन ऑफ सैंपल और थाउजेंड ऑफ सैंपल उस चीज़ को अंदाजा हो जाता है कि ट्रक को किस तरह शो हो रहा है और किस तरह शो नहीं हो रहा। सो दैट इज व्हाई इट्स नॉट गोइंग टू यू नो आउटफ्लो एज वेल। आराम से हमारा काम इसमें भी हो जाता है। Just wait a second, let me see if my camera is now able to work, because camera is pretty important when it comes to extraordinary classes. Right, let me see it now again. All right, so no, why it's not working now? Okay. Oh my God.
Why so much? Oh wow, this was great. मतलब कैमरा ने आज ठान लिए कि उसने नहीं चलना, सो क्या कर सकते हैं फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते जब कैमरे ने सोच लिया कि उसने नहीं चलना तो। ओके, नो इशू। कैमरे नहीं चलना भाई, बाद में देखेंगे उसको अब। अच्छा खैर, अब हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन करेंगे क्लास नेम्स की। तो हमारे पास ये ऑलरेडी मालूम है, आप जब टोरंटो वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारे क्लास नेम्स अवेलेबल होगी। इसी तरीके से हम क्लास नेम प्रोवाइड करने, क्योंकि हमारे पास लेवल 0 ये है, लेवल 1 ये है, लेवल 2 ये है, एंड सो ऑन। लेवल लाइन हमारे पास ट्रक होगा। तो हमने अब एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शिप, ट्रक रख दिया है। So it means the number of level is representing going to represent this kind of level. अगर हमारे पास लेवल 7 है which is going to be technically 8th level, तो वो हॉर्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तमाम क्लासेस के हमारे पास पिक्चर्स अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, प्लॉट डॉट फिगर साइज बता दिया कि भाई हमारा फिगर साइज 10 by 10 है, एंड फॉर आई इन रेंज 25, क्योंकि हमारे 25 पिक्सल्स होंगे। और इतफाक से 10 by 10 की भी पिक्सल्स में और कम पे से शेयर किया है, बट नो वरीज, ताकि जगह कम गिर जाए। सो फॉर आई इन रेंज 25 वी प्लॉट डॉट सबप्लॉट सबप्लॉट 5 5 i+1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि प्लॉटिंग करनी है और हमारे पास के 25 फॉर एग्जाम्पल पिक्सल्स हैं। तो हम उस 25 पिक्सल्स के ऊपर रन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हमारी रेंज क्या है, 25 रेंज है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 5,5। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सब प्लॉट्स बनेंगे वो इतने बनेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 25 इमेजेस भी हैं और 25 by 25 पिक्सल्स भी हैं, लेकिन हम जो हमारा फिक्स साइज होगा वो क्या होगा, 10 by 10 होगा। फिर हमने प्लॉट डॉट एक्सटिक्स रख दिया, प्लॉट डॉट वाइटिक्स रख दिया, और उसमें हम लोग कोई वैल्यू पास नहीं करी, ताकि हमारे पास, क्योंकि ये बेसिकली मैट प्लॉटलिब के लिए तो ये ग्राफ होगा, तो वो यहाँ पे इमेजेस में ये टिक्स ऐड कर देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं जस्ट फॉर एन इंस्टेंस के, अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूं तो ये कैसा प्रिंट करेगा, जस्ट लुक एट इट के कैसा प्रिंट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास स्केल्स आ रहा है, 0 10 20 30। क्यों, क्योंकि इसके लिए तो ये ग्राफ था ना, तो उसको थोड़ी पता हमने क्या प्रिंट करा है। सो नाउ इफ आई जस्ट रिमूव दिस एंड नाउ अगेन प्रिंट दिस, तो हमारे पास अब चीज़ें बहुत बेहतर आ रही है, मतलब लग रहा है कि भाई हाँ ये हमारे पास एक इमेजेस है। नाउ प्लॉट डॉट ग्रिड फॉर्स कर दिया ताकि हमारे पास ग्रिड्स भी प्रिंट ना हो, क्योंकि हम ग्राफ ही हमारे पास इमेज, देन वी आर हैविंग प्लॉट डॉट इम शो व्हिच इज बेसिकली देन इमेज शो। हमें 20 इमेजेस डाल दी हैं यहाँ पे, ठीक है। 25 इमेजेस हमारे पास होंगी जो प्रिंट हो जाएंगी स्टार्टिंग की। और सी मैप इज इक्वल टू प्लॉट डॉट सी एम डॉट बाइनरी, ठीक है। इस कलर मैपिंग के हिसाब से हमारे पास कलर मैपिंग भी हो जाएगी, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव आवर ऑल काइंड ऑफ इमेजेस। हाँ अलबत्ता हमने लेबल डाल दिए जो कि सिर्फ एक्स लेबल होगा, प्लॉट डॉट एक्स लेबल, और क्लास के नंबर्स पर डाल दिया कि ट्रेन लेबल I0। अब बेसिकली हमने बेसिकली देखा जाए तो एक्स लेवल पे वाई की वैल्यू प्रिंट की हुई है जो कि लेवल की वैल्यू है, लेकिन हमें अब क्योंकि ग्राफ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला, हम जस्ट इमेज प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर अस। हम एक्स पे प्रिंट कर रहे हैं, वाई में प्रिंट कर रहे हैं, एक बात एक ही है हमारी। और जस्ट हमने आप इसको प्लॉट डॉट शो कर दिया है विच इज नाउ विजुअलाइजिंग ऑल द इमेजेस वी गॉट इन आवर। हमारे पास ये हमारी इमेजेस थी। वी गोना मूव फर्दर and we're gonna see that what's convolutional base and how CNN layer exactly looks like. Now just forget what kind of data we were having. Now just focus on the architecture of convolutional neural network layer we are having in this CNN. तो अब आप ये देखो कि हमारे पास ये इनपुट आया, ठीक है। इनपुट आने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इट स्टार्ट से फीचर्स चाहिए, और उस फीचर्स के बाद वो हमारे पास एक कन्वोल्यूशनल बेस में आ गया। अब ना एक कन्वोल्यूशनल बेस की जो शेप होगी वो मल्टीपल नो सब लेयर्स के अंदर सब प्रोसेस में डिवाइड हो सकती है। अब कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अब एक इमेज है, आपको आसान करके समझा देता हूँ कि हमारे पास एक इमेज है और वो RGB इमेज है। अच्छा एक चीज और,
कि कन्वोल्यूशनल इज प्रीटी एफिशिएंट इन आरजीबी, ठीक है, ये आरजीबी में कर लेगा, लेकिन अगर आप बेसिक इमेज क्लासिफिकेशन करोगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, सो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू वर्क बेटर इन आरजीबी स्केल्स, पर आपको इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन सीएनएन फिर भी इट गोइंग टू परफॉर्म प्रीटी ग्रेट इन आरजीबी एज वेल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्वोल्यूशन वन के अंदर हमने हमारे पास डाटा आया इनपुट से, और हमने बोला फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वन पीस ऑफ आर्ट सीरीज की बेस में आ गई है। नो क्या होगा, अब हमारे पास स्टैक ऑफ फीचर्स है। अब स्टैक ऑफ फीचर्स से मुराद कि एक हमारे पास अगर अभी हमारे पास 6 इमेजेस है, 6 हमारे पास स्टैक्स है, हमें अज्यूम कर लो कि हमारे पास 3 स्टैक्स हो, तो क्या हो सकते हैं ऑन बेसिक लेवल हमारे पास 8 GB की स्टैक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक हमारी रेड पिक्सल्स डिफाइन हो रहे हैं, एक स्टैक हमारे येलो ग्रीन पिक्सल्स डिफाइन कर रहे हैं, और एक स्टैक हमारा ब्लू पिक्सल्स डिफाइन कर रहे हैं। एंड आफ्टर एडिंग ऑल दोस वैल्यूज ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस, वी ऑफ कोर्स गोइंग टू हैव the perfect color of our image, जो कि actually being divided into some kind of features we are having, जो कि हमारे पास color थी। For example, then we can have exposure rate as well, we can have masking rate as well, you can have focus layer as well, we can have alpha rating as well. Alpha rating is generally used for opacity, I guess, or maybe brightness levels। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं कि इमेज के अंदर, जिसकी बिहाफ पे हमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लेयर को डिफाइन कर सकते हैं। Now, Tayyib has a pretty good question. Why training images are more than testing images? Because टेस्ट, आप देखो सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन टेस्ट हमारा बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब अगर सिलेबस के हिसाब से टेस्ट लिया जाए, तो अगर आपको मैंने बोला कि भाई आपकी 2 किताबें, आपका इसमें से टेस्ट होगा 2 महीने बाद, अब जब आप इसको सीख कर आ जाएंगे तो क्या मैं आपको पूरी पूरी 2 किताबों के बराबर पेपर बना कर दूंगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं आपको टेस्ट करने के लिए एक छोटे से डेटा सेट बनाऊंगा जो कि एक पेपर के फॉर्मेट में होगा। वो ट्रिकी होगा, वो अनसीन भी हो सकता है, ठीक है ना। वो आपको ट्रिक करने के लिए बनाया होगा ना, टू टेस्ट यू कि आपका कितनी अच्छी लर्निंग है, कितनी अच्छी लर्निंग नहीं है। सो दैट इज द रीजन। और वैसे भी टेस्ट डेटा सेट का अगर ज्यादा रख भी लें तो उससे हमें कोई खास फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्रिडिक्शंस के लिए यूज होता है। ट्रेनिंग इमेजेस मॉडल को ट्रेन करने की जरूरत है, कि मॉडल को तो सिर्फ ट्रेनिंग इमेज से फायदा होता है, टेस्टिंग इमेज से फायदा नहीं होता। टेस्टिंग इमेज फॉर अस टू लेट अस नो कि भाई कितना अच्छा हमारा मॉडल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा डेटा आप ट्रेनिंग में डाल दो, क्योंकि अगर आप पूरा का डेटा ट्रेनिंग में डाल दिया और आपने एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए आप टेस्ट डेटा सेट नहीं होगा, आप ट्रेनिंग डेटा सेट एक्यूरेसी फाइंड कर रहे होंगे, सो यू विल बी हैप्पी बिकॉज एक्यूरेसी बहुत अच्छी नजर आ रही होगी वहाँ पे 90s 95 89, जबकि इतनी एक्चुअल इन रियल वर्ल्ड होगी नहीं। अच्छा, ओके। मोहम्मद अली has said सर बॉटल नेक्स को अवॉइड करने के लिए, अब मुझे नहीं पता आपने किस चीज़ का आंसर किया था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट कि किस चीज़ का आंसर था ये, बट डू लेट मी नो कि किस चीज़ का आंसर आपने दिया। अच्छा, तो खैर हमारे पास हमारे पास एक कन्वोल्यूशनल बेस तैयार हो गई। अब इसके बाद हमारे पास इस कन्वोल्यूशनल बेस के बाद हमारे पास होगी सब सैम्पलिंग। अब सब सैम्पलिंग में क्या होता है? सब सैम्पलिंग में हमारे पास बेसिकली पूलिंग हो रही होती है। पूलिंग क्या हो रही होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, अब हमने इस पार्ट को समझना है, ठीक है, नेक्स्ट इमेज के अंदर इस पार्ट को। तो अभी पूरा सैंपल बड़ा है, इस पूरे सैंपल में जब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वही दिखाने जा रहा हूँ कि इतने से बड़े पिक्चर स्क्वायर जो बना हुआ आ रहा है, ये तो छोटा स्क्वायर कैसे बन गया है। तो अभी हम इसको समझने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सीनियर के अंदर कन्वर्शन लेयर के अंदर इसने एक इतने सारे पिक्चर्स थी, उसने ये ले लिया, और मतलब इसकी रेजोल्यूशन अगर आप देखो, उसका पेडिंग साइज अगर हम बात करें तो 4x4 है। अब मैक्स पूलिंग के अंदर जो हमारा पेडिंग साइज है वो 2x2 है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो अब क्या होगा कि पहले 2x2 का यहाँ पे मैक्स पूल लेयर बनेगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमारे पास होगी वो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। हमारे पास अगर इस फर्स्ट 4 बॉक्सेस को हम देखें, जो कि 2x2 का अगर हम मैक्स पुल इस पे लगाते हैं इस 4x4 के ऊपर पहली जगह पे, तो क्या हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू 20 है। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। फिर अब इस 4 हिस्से हमारे पास परफॉर्म हो चुके हैं, मैक्स पुलिंग परफॉर्म हो चुकी है, उसके ऊपर अब इसके आगे जाएगा वो काम मैक्स पुलर। फिर बाद मैक्स पुलिंग यहाँ पे लगी, उसने कहा सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है? 30। 30 यहाँ पर आ गया। फिर नीचे आ जाएगा वो, उसने कहा सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है? उसने कहा 112। 112 आ जाएगा यहाँ पे। उसने कहा सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है? उसने बोला 37। 37 आ जाएगा यहाँ पे।
अब बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, इसने इन तमाम रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस से एक कन्वोल्यूशन बेस से जब मैक्स बूलिंग परफॉर्म की, तो हाईएस्ट वैल्यू जो था अपने पास फेच आउट करा ली किसमें, सुपर सैम्पलिंग के अंदर या मैक्स बूलिंग के अंदर। अब जब हमारे पास फेच आउट हो रही है, सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर विजन और सम काइंड ऑफ अदर सिनेरियोज एज वेल, तो हमारे पास एक परफेक्ट आइडिया है कि जो एक्चुअल इमेज है या जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब फॉर एग्जांपल जिसके अंदर 2 आ रहा है वैल्यू, जिसके अंदर 100 आई वैल्यू, हमारे पास विजिबिलिटी किस में ज्यादा होगी, 100 में ज्यादा होगी, 2 में ज्यादा नहीं होगी। मतलब 2 कैन बी द एज, 2 कैन बी द समथिंग अनदर काइंड ऑफ थिंग एज वेल। तो इसलिए यहाँ पे हम मैक्स पूलिंग अप्लाई करते हैं। अब मैक्स पूलिंग अप्लाई करने की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इट्स प्रीटी यूजफुल व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर डिटेक्टिंग एजेस, वर्टिकल एज, हॉरिजॉन्टल एज। अब आप एक पहाड़ियों में खड़े हैं, सो इट कैन इवन डिटेक्ट दी नैरो डाउन ऑफ योर बॉडी, कि आपकी बॉडी की बिल्कुल जो लाइनन होगा, मतलब लाइनन से मुराद यू कैन से आपकी बॉडी का बिल्कुल साथ साथ जहाँ से एक सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्रॉपिंग जो होगी आपकी, जैसे फोटोशॉप पे कोई कार्ड टूल की तरीके से हो जाती है, सो यहाँ पे बिल्कुल आसानी तरीके से आपको, मतलब आपका एच डिटेक्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मैक्स पूलिंग। लेकिन आपको उसके लिए बड़ा टफ मैक्स पूलिंग एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ता है और लेयर डिजाइन करनी पड़ती है कि वो इस लेवल तक जाए, ठीक है ना। तो अब उस सिनेरियोस के लिए बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, फास्ट आर सी एन एन आ गया है, तो वो और भी अच्छा है एज कम्पेयर टू सी एन एन, इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सी एन एन एज वेल। तो ये बेसिकली रियलिस्टिक सुपर सैम्पलिंग होती है कि आपके पास एक इमेज के अंदर मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है, उनमें से जो डिजायर्ड फीचर्स होते हैं वो मैक्स पूलिंग लेयर फेच करा रहा होता है। नाउ दिस इज नॉट द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ मैक्स पूलिंग लेयर, ये दिस इज अ डेफिनेशन व्हिच कैन लेट यू नो कि भाई सीएनएन थोड़ा सा बेसिक इंटेंशंस में किस तरीके से काम कर रहा है। इन डेप्थ सीनियर इज इटसेल्फ अ लॉट ऑफ थिंग। अभी हम सब चीजों को देख भी नहीं रहे हैं, हम सब बेसिक सीनियर और मैक्स पूलिंग लेयर को देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, और इस बहाने हम एक नोटबुक भी देख लेंगे टेंसरफ्लो के अंदर। लेकिन कल हम देखेंगे, कल हमारे पास कन्वोल्यूशन में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी, बहुत सारे एल्गोरिथम टेक्निक्स देखने को मिलेंगी जिसके थ्रू अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे ना आफ्टर मैक्स पूलिंग। अब ये जो हमारे पास फीचर्स था, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फीचर था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, हमारे पास ये मैक्स पूल था। अब ये मजीद आगे जा रहा है, हमारे पास एक सेकंड कन्वोल्यूशनल लेयर में जो उससे भी छोटी कन्वोल्यूशनल स्टैक लेयर है, साइज का उससे छोटा है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर मजीद दोबारा एक सेकंड पूल लेयर लगा दी है, तो आप देख रहे हो कि कितना मतलब हिडियसली हम होते जा रहे हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। कि मैंने बोला कि पहले देखो कि भाई पिक्चर के अंदर वेर इज दैट ह्यूमन अवेलेबल, हमने बोला ये रहा ह्यूमन। हमने कहा अब इसकी मैपिंग करो आइस की फीचर्स की, क्या ये वही इंसान है, इसने आइस के फीचर को मैप किया, माउथ की फीचर्स को मैप किया, मतलब चेहरे के फीचर्स को मैप करने से बोला कि हाँ भाई ये वाकई तौर पे ये इंसान ही है। फिर हमने एक कॉन्वर्सेशन ले लगा दी, क्या बताओ ये कौन सा इंसान है रिकॉग्निशन के लिए। तो इसने मजीद मैपिंग करी, मजीद इंडेंस चला गया, हम हो सकता है हम हिडन लेयर भी अप्लाई कर दें, एंड देन इट्स टेल कि भाई ये हमारे पास जो भी है वो हुज़ैफा खड़ा हमारे सामने, एंड देयर इज द नेम ऑफ दैट पर्सन, इतने परसेंट चांसेस है कि वो हुज़ैफा है। सो नाउ आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया कि बेसिकली कन्वोल्यूशन लेयर का काम करने का स्टाइल, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दो कन्वोल्यूशन बेस हो गया और हमारे पास दो हमारे पास पूलिंग बेस हो गए, उसके बाद हमारे पास हिडन लेयर आ गई। अब आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा शायद ये हिडन लेयर एक, पता नहीं, शायद एक ही लेयर है। एक्चुअली दीज आर सो मेनी लेयर्स के इनको सेपरेट किया जा सकता। सो इफ यू सी हियर, अगर मैंने यहाँ पे हिडन लेयर लगाई हो, सो लेट मी शो यू कि आपके पास ट्रेनेबल पैरामीटर कितने पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने फ्लैटिंग एक लेयर लगाई हुई जो कि हमारे पास एज एन हिडन लेयर काम कर रही है ऑफ कोर्स। तो आप देखो 1024, मतलब हमारे पास 1024 इसकी जो है आइट्रेशन बेस्ड शेप्स होंगी। हाँ, एक चीज है जो नोटिसेबल है कि वाई दिस इज नॉट लुकिंग लाइक दिस स्क्वायर्स, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लेड की तरह से क्यों शो हो रहा है, और उसका उसे शो क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज वी आर बेसिकली फ्लैटनिंग आवर इमेजेस। हमारे पास 3x3 फॉर्मेट की इमेजेस थी, हम उसको फ्लैट कर रहे हैं because we have to simplify the images after performing of after extracting some sort of features and training on them. हम उनको फ्लैट करेंगे and then we are going to generate a
डिजायर्ड आउटपुट। तो खैर अब देखते हैं हम अपना न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हैं सीजन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने लिखा मॉडल इज इक्वल टू मॉडल नॉट सिक्वेंशियल which is going to be an easy thing sequentially पे यूज करते हुए। then we add our first layer which is going to be our input layer। अच्छा हमारी input layer ही इत्तेफाक से हमने डायरेक्ट कन्वोल्यूशन लेयर ले ली है। तो हमारे पास जैसी पहली लेयर में आएगा इनपुट आएगा तो सबसे पहले कन्वोल्यूशन में जाएगा, ठीक है। और हमने इस फैक्टराइजेशन फंक्शन क्या लगा दिया, रेलू लगा दिया। मतलब हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी उनके ऊपर रेलू परफॉर्म हो रहा होगा एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। अब हमारे पास रेलू परफॉर्म हो रहा है इनपुट शेप 32 32 3 32 30 हमारे पास इसकी शेप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कन्वोल्यूशनल बेस की होगी। और 3 क्यों लगा है यहाँ पे, तो हमारे पास 6 पड़ी है क्योंकि मुझे अभी इमेज ये मिली थी। 3 क्यों रखी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 3 कैन से शेप्स होंगी, डायमेंशन होगी विच इज रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो दैट इज व्हाई वी हैव मेंशनड इट 3। तो देखा जाए तो एक तरीके से हमारे पास एक 3D ये टेंसर बन चुका है। ये हमारे पास कोई 2D नहीं है, 3D टेंसर कहलाएगा। तो हमारे पास इनपुट जो है 3D टेंसर के फॉर्मेट पे है। देन वी हैव एडेड मैक्स पूलिंग 2D जो इस 32 बाय 32 के फॉर्मेट के ऊपर 2D मैक्स पूलिंग अप्लाई कर रहा है विच इज एक्चुअली परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ फिल्टर। उसके मजीद बाद हमने एक कन्वोल्यूशन लेयर और लगा दी है और उस कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमने यू कैन से कि हमारे पास इनपुट नहीं हो रहा, हमारे पास जस्ट जो डाटा हमारे पास आ रहा है वही आउटपुट जा रहा है। That is why we have added 64 and 3 by 3 here। और वहाँ पर एक्टिवेशन हमने वैल्यू डाल दिया, ठीक है। एक्टिवेशन वैल्यू डालने के बाद अब आप बोलो कि भाई ये 3 by 3 क्यों आ रहा है, तो भाई ये 3 by 3 यहीं से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसका जो आर्किटेक्चर फॉर्मेट है उसके हिसाब से ही ये चलता आ रहा है, कोई खास और तरीका नहीं है। तो हमारे पास ये एक्टिवेशन फंक्शन आ गया जो कि हमारे पास यहाँ पे भी वैल्यू है, इधर भी वैल्यू है हमारे पास। तो हमने बेसिकली 2 दफा एक ही लेयर को लगा दिया है टू मेक आउट द बेस्ट परफॉर्मेंस इफ यू कैन। हमारे पास यहाँ पे 2D मैक्स पूलिंग लेयर है, हमारे पास 1D मैक्स पूलिंग भी होती है, 3D मैक्स पूलिंग भी होती है। और दोनों में क्या फर्क होता है और कब कौन सी करनी चाहिए वो भी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास 3 कन्वर्शन लेयर विद 2 फिल्ट्रेशन हमारे पास जो है एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास जो लास्ट आउटपुट है वो 64/3/3 के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब हमने देखा है कि हमारे पास मजीद कितने पैरामीटर्स रिटर्न हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अंदाजा होता है कि हमारे पास 32 पैरामीटर्स हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे 64 हो गए। यहाँ पे भी क्योंकि हमने आप मजीद शेप को चेंज नहीं करा है तो यहाँ पे हमारे पास 64 ही रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कहानी बनती है। तो अब जब हमने मॉडल डॉट समरी किया तो हमने यहाँ पे देखा कि पहली लेयर हमारी बनी कन्वोल्यूशन 2D की, जिसमें हमारे पास शेप कुछ यूं थी। हमारे पास 896 ट्रेनेबल पैरामीटर्स थे। फिर हमने मैक्स पूलिंग 2D लेयर बना दी। हमारे यहाँ पे भले से 2D रखा होता है लेकिन 2 रखा होता है कि हमारे पास जो एक तो नहीं जा रहा होगा ना हमारे पास मैक्स पूलिंग लेयर। यहाँ से भी एक मैक्स पूलिंग लेयर जाएगा, इस ऊपर वाले पोर्शन सॉरी यहाँ से भी एक मैक्स पूलिंग लेयर जाएगा, एक नीचे वाले पोर्शन से भी एक मैक्स पूलिंग लेयर जाएगा, 3-4 मैक्स पूलिंग लेयर्स हो सकते हैं। That is why we are having 15 of the value here। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेनर पैरामीटर बिल्कुल जीरो है क्योंकि मैक्स पूलिंग लेयर हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क लेयर नहीं होती है। दैट इज जस्ट यूज फॉर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे ट्रेनर पैरामीटर जीरो दिखा रहा है। देन वी आर हैविंग सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर here and here we are having 18,496 trainable parameters। then we are having another max pooling layer which is performing filtration and then we are having 36,928 trainable parameters। नॉर्मली अब आप जब इनको समीशन पे जाओगे तो हमारे पास टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर जो है वो 56,320 है। तो ये कोई कम ट्रेनेबल पैरामीटर्स ना हुए, हमारे पास अच्छे खास ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं एंड इट डज टेक सम टाइम। तभी हमारे पिक्चर्स 50,000 थी फॉर ट्रेनिंग। तो अगर हम ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पिक्चर लगा देते लाइक 1920x1080 तो it's going to take an hour to train the models or maybe more than an hour। That is why we are not using such an advanced images right now in this introductory workshop। Then above you can see that the output of every convolution 2D layer and mesh 2D layer is a 3D tensor of shape height with channels, ठीक हो गया। and the width height dimension tend to shrink as you go deeper in the network। The number of output channels for each common layer is controlled by the first argument 3264। Typically as the width height shrink you can afford computationally to add more output channels in each convert 2D layer। अब आप यहाँ के आउटपुट लेयर मजीद बढ़ा सकते थे, 64 से 128 भी कर सकते थे, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी कंप्यूटेशन जो कॉस्ट होती
वो इंक्रीज हो जाती. सो दैट इज व्हाई वी आर डोंट हैव टू परफॉर्म दोस काइंड ऑफ थिंग्स हियर. नाउ हियर अभी हमारा मॉडल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी हमें सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल बेस परफॉर्म करी है. जो कॉन्वोल्यूशनल बेस हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड मैक्स पूलिंग लेयर तक परफॉर्म हो रही थी. अभी हमारे लिए ये दो लेयर्स बाकी हैं, तो अभी हम इन दो लेयर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे. हेयर adding dense layer on top. To complete our model, you will feed the last output potential from the convolutional base of shape 4 by 4 by 64 into one more dense layer to perform classification. Dense layer takes vectors as input, which are 1D, while the current output is a 3D tensor. First, you will flatten or unroll the 3D output to 1D and then add one more dense layer on top. तो वही वाली बात है कि हमारे पास जो 3D डेटा था, हम बेसिकली करके आ रहे हैं उसको 1D में कन्वर्ट कर रहे हैं. सेम इज परफॉर्मिंग हेयर. सबसे पहले हमने क्या किया, इमेज को फ्लैट कर दिया. अब तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक्टिवेशन फंक्शन तो होगा नहीं, हम सब 3D को 1D में कन्वर्ट कर रहे हैं. वी आर डूइंग नथिंग हेयर. फिर हमारे पास एक लेयर और आ गई जिसके अंदर हमने हिडन लेयर बनाई है. ये हमारी हिडन लेयर है. आप चाहो तो इन सबको नेम दे सकते हो स्पेसिफिकली. आई हैवंट गिवन इट हियर. देखिए हमारी हिडन लेयर है. हमने यहाँ पे भी एक्टिवेशन फंक्शन क्या रख दिया, वैल्यू रख दिया है. ठीक है, अब आप चाहो तो लीनियर रख दो, आप चाहो सॉफ्टवेयर रख दो, और आप चेक कर लेना कि रिजल्ट क्या आया है. रेलू इज प्रीटी फाइन विद दिस इमेज क्लासिफिकेशन, दैट्स व्हाई आई हैव कीप विद दिस रेलू. फिर हमारे पास यहाँ पे भी 64 टर्मिनल पैरामीटर्स हैं, लेकिन हमारे पास जो लेयर होगी वो फ्लैट एंड में अवेलेबल होगी. देन हमारे पास ये हमारी आउटपुट लेयर होगी, क्योंकि अब जो डाटा इसके बाद आगे जाएगा वो 10 की वैल्यू हमने क्यों दी है, क्योंकि हमारे पास 10 आउटपुट क्लासेस थी. अगर हम 64 दे देते तो वो जो 10 आउटपुट क्लासेस थी हमारे पास डिजायर्ड अचीवमेंट में नहीं आ रहा होता है. सो दैट इज द रीजन. सो वी आर प्रोवाइडिंग 10 वैल्यू है. और अगर हम आगे जाकर देखें, अपन पूरे आर्टिकल को दोबारा से पढ़ें, तो इधर हमारे पास पहले 36,928 ट्रेनेबल पैरामीटर तक हमारे ट्रेनेबल पैरामीटर हो गए थे. ठीक है, जो कि टोटल 56 कुछ बन रहे थे. फिर हमारे पास जब एक फ्लैटन लेयर लगी जिसमें 1024 हमारा टोटल कैन से टोटल 1D शेप थी हमारी, और हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर कोई भी नहीं था. लेकिन जब हम इसको ट्रेनिंग के लिए लेके गए डेंस लेयर के अंदर, हिडन लेयर के अंदर विद शेप 64, तो हमारे पास टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर कितने बन गए, 65,600. अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास के अंदर न्यूरल लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी, डेंस लेयर बढ़ती चली जाएगी, हमारे पास जो कंप्यूटेशन है वो एक्सपोनेंशियली रिक्वायर्ड होगी. मतलब आधे से बिल्कुल डबल. कहाँ 896 था, फिर एकदम 18,000 हो गया, फिर 36,000 हो गया, फिर 65,000 हो गया. एंड दीज आर जस्ट एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग. तो आपकी कंप्यूटेशन पावर क्या होती है, एक्सपोनेंशियली रिक्वायर्ड होती है. एंड इन दैट सिनेरियो योर मॉडल टेक्स a huge time while performing prediction as well. आउटपुट लेवल में हमारे पास ज्यादा ट्रेनेबल पैरामीटर नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंपल भी देखो तो 65,600 थे हमारे पास, हमें 10 में कन्वर्ट कर दिया तो 650 हो गए. ठीक है, तो अगर हम टोटल को सबमिशन इसकी फाइंड करें तो टोटल हमारे टोटल पैरामीटर जो थे वो 1,22,570 हमारे टोटल पैरामीटर्स बन रहे हैं, विच इज समहाउ अ प्रीटी ग्रेट वैल्यू फॉर अ बेसिक CNN can say model. Now, as you can see, our 4 by 4 6 outputs are flattened into vectors of shape 1024 before going through two dense layer. अभी 1024 के अंदर क्यों हुए, अगर कभी सोच रहा हो ना कि 1024 क्यों बने, so it's a good idea to multiply all these answers. You will get the answer कि यहाँ पे इन तीनों को जब हमने फ्लैट किया तो 1024 क्यों बन गए. अच्छा, now compiling and train the model. हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडल को कंपाइल किया by using Adam classifier, Abdom optimizer, and then we are having a loss function which is tf.cross parse categorical cross entropy. This is one of the great loss function you're gonna use for classification. लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर जगह यूज मत करना बैठ जाएगा. दिस इज मेनली गुड फॉर व्हेन इट कम्स टू इमेज क्लासिफिकेशन. ठीक हो गया, क्योंकि क्रॉस एंट्रोपी परफॉर्म हो रही होती है. आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर फॉर्मेट कि क्या होता है क्रॉस एंट्रोपी. लेकिन इमेज क्लासिफिकेशन के अंदर दिस एल्गोरिथम इज दिस लॉस फंक्शन इज प्रीटी गुड. लेकिन अगर आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हो, दूसरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू सक योर परफॉर्मेंस. ठीक है. Alright, so here we are having matrix is equal to accuracy. तो हमें सब accuracy फाइंड करनी है अभी फिलहाल. ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि हमारी कंपाइलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, कि हमें इस फॉर्मेट के ऊपर कंपाइल करना है. ये हमारा ऑप्टिमाइजर है, ये लॉस फंक्शन, ये हमारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है.
Then here we are having history is equal to model dot fit. हम यहाँ पे ट्रेन इमेजेस डाल दिए, यहाँ पे हमने ट्रेन लेबल्स डाल दिए, यहाँ पे हमने इपॉक्स डाल दिए, 10 इपॉक्स हमारे पास वैलिडेशन डाटा है, टेस्ट इमेजेस हैं और टेस्ट लेबल्स हैं। अब यूजुअली वैलिडेशन डाटा सेट भी हम अलग से बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स दे दिए बिकॉज क्योंकि अभी हम इंडस्ट्री लेवल पे काम कर रहे हैं। आगे जाके हम उसको वैलिडेशन सेट भी हम अलग बनाएंगे, टेस्ट सेट भी हम अलग बनाएंगे, ट्रेनिंग सेट भी हम अलग बनाएंगे, जिस तरह की हमें लास्ट वर्कशॉप के अंदर भी दफा। तो हमने यहाँ पे हमारे पास जो भी मॉडल की हिस्ट्री होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, हमारे पास वो हिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। सो इफ यू ट्रेन आवर मॉडल, तो हम देखें विद इन 10 इपॉक्स हमारी जो एक्यूरेसी है वो 0.7790 अचीव हुई है। ठीक है, लॉस हमारा बहुत ज़्यादा कम नहीं हो सका, लॉस हमारा 0.6303 है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम देखें तो वैलिडेशन लॉस हमारा 0.8810 है, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी और भी कम आई है, 0.7037। तो मतलब हमारा मॉडल 70% एक्यूरेट काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो कन्वोल्यूशन नेटवर्क लेयर है वो बहुत ज़्यादा नोविस है, हमने बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है, जो कि हम कल बनाएंगे इंशाल्लाह। सो फॉर दैट सिनेरियो इट्स वर्किंग प्रीटी गुड, क्योंकि हमारा जो CNN लेयर है उसकी जो यू कैन से आर्किटेक्चर है वो बहुत वाकई में बहुत नोविस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। Now in our evaluation, what we are going to do, we just plot the history of our model. किसी सिंपल हमने क्या करा कि हमने पहले उसमें एक्यूरेसी प्लॉट कर दी है, फिर उसी प्लॉट में हमने उसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी प्लॉट कर दी है। कैसे होगी कि हिस्ट्री और हिस्ट्री, और आप उसका कॉलम डिफाइन कर दें एक्यूरेसी के नाम से, फिर आप वैलिडेशन एक्यूरेसी के नाम से कर दें, तो हर इपॉक पे इसकी जो एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी होगी वो प्लॉट हो जाएगी। लेबल हमने दे दिया कि एक्यूरेसी रखना है, वैलिडेशन एक्यूरेसी रखना है, एक ही फिगर में प्लॉट हो जाएंगी। फिर हमने बोला कि एक्स लेवल जो हमारा इपॉक्स होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इपॉक्स के अगेंस्ट प्लॉट हो रहा है, और प्लॉट डॉट वाई लेवल पे हमने क्या रखा है, एक्यूरेसी रख दिया है कि हमारा नंबर ऑफ यू कैन से वाई एक्सिस पे हमारे पे दोनों के दोनों जो भी हैं है तो एक्यूरेसी ना, चाहे वैलिडेशन हो या फिर दूसरी नॉर्मल एक्यूरेसी हो। So if you see this here, you will see here how it's looking. Then we are having plot.y limit here. हमने बोला कि भाई 0.5 से स्टार्ट हो और 1 पे खत्म हो, हम चाहते हैं 0 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारा एक्यूरेसी जो रेट है, अगर हम देखें से स्टार्ट हुआ, ओके। तो हाँ चलो कोई मसला नहीं है, एक हमारा थोड़ा पहले से स्टार्ट हो गया है, लेकिन दूसरा हमारा 0.5 के बाद से स्टार्ट हुआ है। सो नो वरीज, तो ये हमारा गैप है अच्छा खासा। अगर ये दोनों गैप बहुत कम भी हो ना, तो इट मीन्स कि आपका मॉडल अच्छा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वैलिडेशन एक्यूरेसी को 0.9 तक लेके जाना है, और वो हम देखेंगे कि हम कल उसको कैसे 0.9 तक लेके जाएंगे। हेयर वी हैव मेंशन प्लॉट डॉट लेजेंड, तो हमारे पास यहाँ पे एक लेजेंड मेंशन हो गया, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया LOC इज इक्वल टू लोकेशन इज इक्वल टू लोअर राइट, तो हमारे पास लोअर राइट पे लेजेंड आ रहा है, अपर राइट पे नहीं आ रहा है एज पर डिफॉल्ट। और टेस्ट लॉस कॉमा टेस्ट एक्यूरेसी, हम मॉडल की इवैल्यूएशन करेंगे, कैसे करेंगे कि हमने टेस्ट इमेजेस पास करिए, टेस्ट लेबल्स पास करिए, और हमने वर्बोस रखी 2, ताकि हमारी जो है कंप्यूटेशन मल्टी थ्रेडिंग के अंदर परफॉर्म हो, फटाफट हो जाएगी। तो अब क्या करा हमने हमने मॉडल को इवेल्युएट करा जस्ट फॉर नोइंग आउट कि क्या मैक्सिमम प्रेडिक्शंस हो सकती है। सो इफ वी जस्ट रन दिस, तो हमारे पास ये आंसर आया कि अभी भी हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट इमेजेस, वो ये आ रही है 0.7053, विच इज दिस वन। ठीक हो गया। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमारी मॉडल की क्या एक्यूरेसी है और किस तरीके से हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। Now, if we are mentioning here what is a test accuracy, जो कि हमने यहाँ पे mention करी, तो if you want to print this, तो यहाँ पे हमारे और भी कम आ रही है 0.7052, क्योंकि ये हमने मॉडल से हट के की हुई है, मॉडल के साथ नहीं की हुई है, लेकिन ये बेसिकली एक ही है, 0.7053 ही है, तो उसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। वो और डिटेल, क्योंकि हमारे डेसिमल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गए, तो इसलिए उसने 293 की जगह 29 जो हमारे एक्चुअल नंबर्स थे वही आ गए। सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया है कि किस तरीके से हम एक एडवांस वर्कशॉप बना सकते हैं। सो आई हैव गिवन अ लिंक हियर एज वेल, सो यू कैन स्टडी दिस बाय सिंपली मूविंग आउट टू दिस टेंसरफ्लो वर्कशॉप। अब ये बहुत हार्ड होगी, अगर आप लोगों को समझ में ना आए ना तो छोड़ दिएगा, कल हम पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, शायद हम दूसरी वर्कशॉप को पढ़ेंगे,
लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से डिफरेंट इमेजेस हैं, जैसे होता है ये डेटा सेट जो हम यूज कर, लेकिन इसमें एमएससी डेटा सेट के ऊपर दिखाया गया दैट हाउ यू कैन अचीव अ ह्यूज एक्यूरेसी रेट। तो हमारे पास यहाँ पे इन लेस देन 5, चलिए 5 बॉक्स के अंदर हमारे पास जो एक्यूरेसी थी टेस्ट 98% आ गई थी, which is something pretty great when you say इतनी अच्छी एक्यूरेसी कैसे आई हमारे पास। तो सीनन इतनी अच्छी एक्यूरेसी आराम से ले आता है, उसके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन अगर आपको मॉडल अच्छा बना हुआ हो, अब ये किस तरह आपका मॉडल अच्छा बनाएगा, किस तरह आपका मॉडल अच्छा बनना चाहिए, सो इट विल स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी समझने के अंदर कि भाई न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाना है। लेकिन प्लीज जस्ट स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट्स ऑन डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें गिटहब के ऊपर, and with the span of time you will see कि आप कितनी जल्द से जल्द आपका जो लर्निंग रेट है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा और आपकी न्यूरल नेटवर्क की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। Now if you are having any sort of question regarding CNN, so you can ask me right away. We have covered a workshop in less than an hour, 58 minutes and 15 seconds मेरे पास टाइम आ रहा है। यू मे हैव स्टार्ट अर्लियर, मुझे हमेशा 4-5 मिनट लग जाते हैं सेटअप करने के अंदर। बिल्कुल मैं 8 बजे ही बैठता हूँ सेटअप करने, ये भी मेरे अंदर एक आदत है, बिकॉज ऊपर कोई है नहीं मेरे, आई एम द वन हु इज लीडिंग, तो थोड़ा बहुत चल जाता है। ओके, लेट मी ट्राई माई कैमरा नाउ if it's working or not. I'm not sure that if my camera, but I'm not going to continue it because it seems it's still not working. So it's better it's not work. मैं इसको हाई रख दूं तो बेहतर है। So now guys, if you are having any sort of question, अच्छा मुझे मालूम है कि मेरा कैमरा क्यों नहीं चल रहा है। So because मेरा कैमरा मैंने आज USB पे नहीं कनेक्ट किया हुआ, आज मैंने अपना कैमरा वाईफाई पे कनेक्ट किया हुआ है, and it's causing lag क्योंकि मेरा वाईफाई राउटर इट्स अराउंड 40 to 50 meters, 40 to 50 तो ज़्यादा बोलती है, लेकिन 25-30 meters दूर है यहाँ से। So maybe that is why webcam is doing some lag here. All right, guys. Any sort of question, if you are having any sort of question, you can ask. So we may comes towards the end, जो कि हमारा एक फाइनल स्टेप है, और वो क्या होगा अल्लाह हाफिज का। उसके बाद हम कल देखेंगे CNN in some advanced mode, फिर हम कल परसों देखेंगे CNN in PyTorch, and you will simply gonna love CNN, and I will expect कि आप वीकेंड के ऊपर CNN पे काम जरूर करें, क्योंकि फिर हम RN पे चले जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप सीनियन पे काम कर लोगे तो आपकी सीनियन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट आरएल में चले गए और आपने सीनियन पे काम नहीं किया हुआ तो आप सीनियन भूल जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज डू वर्क ऑन सीनियन। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस गाइस, क्या हो गया? सो है क्या ये न्यू क्लास नहीं हुई क्या? तब सो लगता है जैसे आजकल में सुनने को मुझे मिल रहा है कि यू नो यूनिवर्सिटी क्लास ले रहे होते हैं और बस लगा के सो जाते सुबह सुबह ताकि जागना ना पड़े। सो वी आर प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम दोस गाइस ना, कि मुझे खुशी होती है कभी कभी ये चीज़ देख के। देयर आर टू टाइप ऑफ टीचिंग मेथड्स के, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम बेस्ट टीचिंग, आई एम स्टिल वेरी नोविस एट टीचिंग, बट देयर आर सम टीचिंग सिनेरियोज जहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना चाह रहा होता, even they are paying for that, and there are some things when you are not paying us of course, so लेकिन you still have dedicated motion कि रोज इतने सारे बच्चे होते हैं जो रोज ऑनलाइन मुझसे पहले अवेलेबल होते हैं ऑन द पोर्टल कि वो वर्कशॉप अटेंड करें। So that is why I love this enthusiasm, motivation, especially for the students in Pakistan, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लास्ट एआई वर्कशॉप होगी जो उर्दू में होगी, क्योंकि थर्ड एआई वर्कशॉप जो होगी वो उर्दू में नहीं होगी। उसकी रीज़न ये क्योंकि उसमें अगर पाकिस्तानी बच्चों में से बात की जाए तो सब 6 या 7 बच्चे आएंगे, 10 बच्चे आ जाएंगे, 15 बच्चे आ जाएंगे, जो 2 महीने या 1.5 महीने के बाद जब भी हमारा थर्ड प्रोग्राम स्टार्ट होगा 10-15 दिन का, this that's going to be in English because it's going to be research to code, तो वो हम लोग पूरे ग्लोब को टारगेट कर रहे होंगे। तो पाकिस्तानी मैंने देखा है पाकिस्तानी प्रोफेसर्स भी आजकल यही पढ़ रहे हैं जो आप लोग आज पढ़ रहे हैं ना। मैं 2-3 जगहों पे हूँ, एंड दे आर स्टिल लर्निंग दिस क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स एट द स्टेज वेयर बैचलर्स आर लर्निंग द सेम थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह।
Sir, why not we learn such awesome stuff in university? Please ask your university admin. बात जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी. To train any model for classifying images, what is the minimum number of records? Good question. I'm publishing your question. Okay. तो मैंने क्वेश्चन सबके पास शो हो रहा होगा. Someone has asked it. So I would probably say कि at least greater than 1,000 images for neural network to be trained on. क्योंकि अगर 1,000 से कम है तो it's stupid to train the neural network. और अगर आप कहेंगे कि गुड टेक्निक क्या होती है, एक प्रोफेशनल टेक्निक क्या है अगर आप न्यूरल नेटवर्क पे शिफ्ट कर रहे हो, और किस पे जाके मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि किस पे जाके एक न्यूरल नेटवर्क ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो मैं कहूँगा 1,000 पर क्लास. पर क्लास का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ्लोर्स भी हैं और आपके पास कार्स भी हैं जिसके अंदर, तो 1,000 कार की वजह से 1,000 फ्लोर की वजह से तो तब जाके न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करता है. सो या दैट्स अ ग्रेट आंसर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड फ्रॉम माय साइड. So why training images are more than testing? अच्छा ये तो पहले हो चुका है. फिर अच्छा तैयब has asked, please summarize once again difference between each layer in 2 minutes. अच्छा in 2 minutes let's start. देखो कॉन्वोल्यूशन लेयर थी हमारे पास, ठीक है, हमारे पास स्टैक बेस्ड कॉन्वोल्यूशन लेयर थी, हमारे पास इनपुट गया कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर. अब कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमारे पास लेयर कुछ इस फॉर्मेट के अंदर होती है. हमारे पास एक नॉर्मल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लेयर नहीं होती है. इसके अंदर हमारे पास कॉन्वोल्यूशन में फायदा क्या होता है, इसमें हमारे पास स्टैक्स होते हैं, 3D फॉर्मेट में लेयर परफॉर्मेबल होती है. जबकि एक आम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब आप 3D फॉर्मेट करते हो, सो दैट्स डायनामिक, दैट्स नॉट the static format of base in convolution in different neural networks. फिर हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल वन आया. फिर अच्छा कॉन्वोल्यूशनल मतलब हमारा फर्स्ट लेयर आ गई कॉन्वोल्यूशनल बेस की. अब यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है लाइक रेड ग्रीन ब्लू. एज्यूम कर लो कि हमारे पास करंटली यही फीचर्स अवेलेबल है. जैसे आज हमारे पास मेनली यही फीचर्स अवेलेबल थे, हमने कोई एक्सपोजर का फीचर इस्तेमाल नहीं करा, कोई मजीद फिल्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं करी है, ठीक है. अब वो वैल्यूज हमारे पास डिवाइड जाके कन्वोल्यूशन में से डिवाइड हो जाएंगी. फिर हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं मैक्स पूलिंग लेयर. मैक्स पूलिंग लेयर क्या होता है बेसिकली, इट्स अ फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन, कि हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यूज पर फॉर्म ऑफ पैडिंग आ रही होती है जिसके थ्रू हम अंदाजा लगा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एज डिटेक्शन का या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन का, कि भाई हमें इससे अंदाजा होता है कि चेहरा कहाँ पे होगा. बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ फीचर मैपिंग वी आर परफॉर्मिंग इन मैक्स पूलिंग लेयर. लेकिन ये हमारे पास कोई भी लेयर नहीं होती, मतलब कोई न्यूरल नेटवर्क की लेयर नहीं होती. इट्स जस्ट अ फिल्ट्रेशन लेयर. फिल्टर्स हमारे पास अवेलेबल है इन अ CNN, ठीक है. हमारे पास ये हमारे पास ट्रेनेबल लेयर्स होती हैं. डाटा हमारे पास यहाँ पर आकर ट्रेन हो रहा होता है, फिर यहाँ पे आकर फिल्टर हो रहा होता है, फिर यहाँ पे आकर मजीद डिवाइड होकर ट्रेन हो रहा होता है, फिर मजीद यहाँ पे आकर फिल्टर हो रहा होता है. अब कॉन्वोल्यूशन के अंदर क्या है, हमारे पास डाटा स्टैक के अंदर अवेलेबल है, तो विच इज प्रीटी एसेंशियल फॉर ट्रांसफर लर्निंग एंड अदर कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम एज वेल, इमेज क्लासिफिकेशंस एज वेल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि CNN सिर्फ यहीं तक लिमिटेड है. CNN वॉइस रिकॉग्निशन पे भी चल रही है, CNN टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी चल रही है, CNN हर जगह चल रही है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. फिर हमारे पास हिडन लेयर है एक और, जो कि हमारी चौथी हिडन लेयर कहलाएगी, ठीक है. लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, उसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे. अच्छा चौथी क्यों कहलाएगी? सॉरी, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है क्योंकि मैक्स पूलिंग लेयर को इन्होंने लेयर में काउंट नहीं किया जिसके अंदर. सो इट्स और चाहे यू कैन जस्ट सिंपली मेंशन हिडन 4, जस्ट सिंपली मेंशन हिडन 1, क्योंकि हमारी पहली डेंस लेयर तो है वो यही आई है. सो इट्स ऑल ऑन यू, ठीक है. हमारे पास हिडन लेयर जिसकी डायमेंशन 1 थी, 1D लेयर थी हमारे पास. उसके अंदर हमारे पास 1024 पैरामीटर थे टू एनेबल, एंड देन यू आर हैविंग आउटपुट इन द 1D फॉर्मेट एज वेल. तो ये हमारे पास एक फर्क था कि कॉन्वोल्यूशन हमारे पास एक स्टैक फॉर्मेट के अंदर एक 3D टेंसर के फॉर्मेट में हमारे पास कॉन्वोल्यूशन बेस परफॉर्म हो रहा था. कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर हमारे पास सेंटर्ड इमेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती. कॉन्वोल्यूशन में हमारा डाटा का डिस्टर्ब भी हो तो हम उसमें फिल्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि हम डेंस लेयर में फिल्ट्रेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्स पूलिंग डेंस लेयर पे नहीं होती, मैक्स पूलिंग कॉन्वोल्यूशन के ऊपर होती है. सो दैट्स ऑल, दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द अदर डेंस लेयर एंड कॉन्वोल्यूशन लेयर. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट. 3 मिनट हो गए, बट आई ट्राइड टू समराइज एज सून एज पॉसिबल. Any recommendation for deep learning neural network project? Okay. क्या आपका
रिकमेंडेशन दूं, रिकमेंडेशन ये दूंगा कि जस्ट ग्रैब योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, कितने मेंबर्स आपकी फैमिली में, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, जितने भी हो, उन सब की तकरीबन 100 पिक्चर जमा करो, ठीक है, टाइम निकालो, एंड सी दैट इफ यू आर एबल टू क्लासिफाई ईच ऑफ देम और नॉट, ठीक है, इट्स अ गुड टास्क, क्योंकि आप खुद पिक्चर्स खींच चुके, खुद डेटा सेट बनाओगे, सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स देन ह्यूज प्रोजेक्ट, आपको इससे अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर फेस रिकॉग्निशन पे नहीं जाना तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन पे कर लो अपने घर में, मतलब लाइक इमेजेस डाउनलोड करके कर लो, या कुछ भी कर लो तो कर सकते हो। लेकिन अगर इमेज आपकी होगी आराम से, अच्छा ख्याल करना कि 4 की वजह से खींचने लग जाना, मतलब 12 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, आई डोंट वांट योर सिस्टम टू डाई देयर। तो रेजोल्यूशन रखना बिल्कुल मिनिमम जो मोबाइल पे अवेलेबल हो, और रात में सोते हुए जैसे मर्जी हर फैमिली मेम्बर की खींच लेना, कम से कम 50 to 100 पिक्चर्स, इट्स इनफ, क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, सो यू डोंट हैव टू कैप्चर 1000 इमेजेस फॉर ईच पर्सन। तो 50 पिक्चर्स एक हफ्ते लगा के खींचो, और फिर देन परफॉर्म टास्क देयर। अगर आप वो उसको सक्सेसफुली कर लेते हो, सो आई एम प्रीटी श्योर कि वन डे यू विल सी कि आपने कितना सीखा उस एक छोटे से प्रोजेक्ट से, बिकॉज आई हैव पर्सनली डन दैट प्रोजेक्ट इन व्हेन आई वाज न्यूली एंटर इन डीप लर्निंग revolution. Acha, sir, what if models are overfitting on training and testing dataset accuracy is also one. So how to fix this? I'm basically finding the service trust service by coding the specific values to one and you're not trusty and this issue occurred. Yes. अभी तक तो हमने ओवरफिटिंग से डील नहीं करा न्यूरल नेटवर्क के अंदर अली रजा, लेकिन हमारे पास एक पूरी इस पर डिटेल्ड वर्कशॉप होगी जिसमें हम लोग ओवरफिटिंग डील कर रहे होंगे, और जैसे जैसे आगे जाके हम लोग एडवांस नेटवर्क भी जाएंगे ना, तो हमारे पास एक्यूरेसी जंप करेगी। एक्यूरेसी जंप कैसे करेगी कि कभी आ रही होगी 70, कभी आ रही होगी 95, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आ रही होगी वो। तो वहां पे हम एक टेक्निक्स होंगी ओवर फिटिंग की, जिसको हम ओवर फिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड देन यू विल सी हाउ टू overcome with this issue. You just have to wait for 10 days more or 1 week. Not a business day, just a normal days. तो एक आध हफ्ते में ये हमारा टॉपिक भी आ जाएगा। ओके सर, व्हाई नॉट वी लर्न सच ऑसम स्टफ इन यूनिवर्सिटी? तो ये तो ना एक ऐसा सवाल है इसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ, इसका जवाब आया है, एंड आई लविंग दैट आंसर। So I have asked you a private question. If you are available, you can surely reply me. Any further question, guys? Any further question? So okay, so if you are not having any further question, so we're gonna end the class. And मैं कल देख लूँ कल हमारा क्या है। अच्छा सही है, मैंने देख लिया कि हम मुझे कल क्या पढ़ाना है, तो मैं उसकी नोटबुक रेडी कर लूंगा। एट सून वी गोना परफॉर्म अ ग्रेट थिंग्स टुमारो। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखें और प्लीज कीप स्टडिंग। दैट्स माय फाइनल मैसेज फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।